जैसे आप स्टडी करेंगे it will shape your life. ये आपकी लाइफ को एक शेप देगी। It will, hallelujah, fulfill the purpose of God in your life. ये स्टडी आपको इस चीज का फुलफिल करेगी कि खुदावंद ने आपको किस मकसद के लिए बनाया। I greet you all in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबको वेलकम करता हूँ। And it is a joy to teach you, hallelujah, the Life Foundation Level 1 lesson. मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ आपको लाइफ फाउंडेशन के लेवल 1 को सिखाते हुए। So before going to the level 1 lesson, I want to give you why we do this Bible study. इससे पहले कि हम लाइफ फाउंडेशन की स्टडी को स्टार्ट करें, इस तालीम को स्टार्ट करें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। So as you do the study, जैसे आप स्टडी करेंगे it will shape your life. ये आपकी लाइफ को एक शेप देगी। It will, hallelujah, fulfill the purpose of God in your life. ये स्टडी आपको इस चीज का फुलफिल करेगी कि खुदावंद ने आपको किस मकसद के लिए बनाया। So after doing this study, you are able to minister others. आप ये स्टडी हासिल करने के बाद दूसरों को भी खुदावंद की राह पे लाएंगे। Let me assume, as most of the Pakistanis have a dream to go to USA. सब पाकिस्तानियों की यही ख्वाब होता है कि वो यूएसए में जाएं। अगर USA का वीजा रिजेक्ट हो गया, they will try to Canada. अगर उनका यूएसए का वीजा कैंसिल हो गया तो वो कनाडा जाने की So कोशिश। they have a dream. It is a right dream to go to a new country. ये अच्छा है कि हम दूसरी कंट्री में जाएं। There's nothing wrong. ये बुरा नहीं है। So आपका नंबर लग गया, सोचिए, hallelujah. You are in that country. So because of this study, you can train others. You can plant the branches of your fellowship in that country. इस तालीम को लेने के बाद हम दूसरों को भी दूसरे कंट्री में जाने का एक जरिया बन सकते हैं। And the second purpose why we give more important for this study, और ये दूसरा मकसद इसका ये कि हम इसको क्यों, ये हमारी जिंदगी के लिए अहम है। because God has shown me this Urdu church is going to be expanded. It is going to be multiplied. आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के खादम पे जाहिर किया कि उर्दू चर्च बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। And many families going to come. और बहुत सी फैमिलीज हम में शामिल होने वाली हैं। And you are going to be train them this beautiful study to make them disciple. हम सब इस बात की तरबियत हासिल करेंगे, हम और लोगों को खुदावंद के शागिर्द बनाएंगे। Amen. So you know now why we are doing the Bible study. अब हम समझ आगे हम इस तालीम को क्यों लेना चाहते हैं। So today the first lesson I am going to present to you. आज का पहला सबक मैं आपके सामने रखते हैं। So it is called sin and need of salvation. पहला सबक ये गुनाह और नजात की जरूरत क्या है। And we are going to learn the later classes, salvation and being born again. इसके अलावा और भी हम सीखेंगे हम मसीह में दोबारा बपतिस्मा कैसे लेंगे। And we are going to learn about repentance and gift of righteousness. और कफारे के बारे में और नजात के बारे में सीखेंगे। And after we are going to learn about importance of studying the word of God in daily life. इसके बाद हम देखेंगे खुदावंद के कलाम की हमारी जिंदगी में रोजमर्रा जिंदगी में क्या अहमियत है। And the daily personal prayer life, how to develop a personal prayer life. और हमारी जो शख्सी दुआ है वो किस लिए अहम है। And we are going to study about water baptism. इसके बाद हम बपतिस्मे के बारे में तालीम लेंगे। And being planted in the right church. और उसके बाद हम एक अच्छे चर्च में कैसे प्लांटेड हो सकते हैं, कैसे हम उसमें कायम रह सकते हैं। So those who complete this study, they are qualified to take water baptism. जो कोई इस तालीम से क्वालिफाइड हो जाता है, तालीम याफ्ता हो जाता है, वो बपतिस्मा लेने के काबिल होता है। But still those who are already taken, it is a good, hallelujah, chance to learn again, prepare yourself so you can baptize others. जिन्होंने बपतिस्मा याफ्ता है, जो ले चुके हैं, उनके लिए और अच्छी बात है कि वो दूसरों को बपतिस्मा दे सकते हैं। Amen. Are you ready? Hallelujah. So what is the first lesson we are going to learn? पहला क्या है? Sin and need of salvation. Sin and need of salvation. Excellent. So as a good student, I encourage you, come here with the notes and pen. We can see, hallelujah, Farooq brother is fully prepared. हम देखते हैं कि फारूक ब्रदर नोट और पेन लेकर है, जो अच्छा तालीम हासिल करने वाला स्टूडेंट है, वो अपने साथ पेन और लेकर आता है। And Nitin already completed level 1, level 2, level 3. He is our senior. ब्रदर नितिन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया लेवल 1, लेवल 2, तो वो हमारा सीनियर है। And Sophia is one of the bright students, and she also completed level 1 and level 2.
मैंने God bless both of them. And now Salma also very active, hallelujah. She also completed few lessons from level 1. सिस्टर सलमा ने भी लेवल 1 के कुछ लेसन कंप्लीट किए हैं। So I want you all should complete this level 1 and it will really a blessing for you. मैं चाहता हूँ कि सारे लेवल 1 के सारे लेसन कंप्लीट करें जो कि आपके लिए बाइस बरकत है। So as we are doing this lesson, there will be homework. मैं आपको ये लेसन सिखाने के बाद होमवर्क दूंगा। So homework you can submit to Sophia directly. आप मेरे को वो होमवर्क सबमिट करवा सकते And she will have an Excel. Hallelujah. Farooq brother, lesson 1 completed. Congratulations. Hallelujah. Naeed sister, lesson 1 completed. So she will keep the track. आप मेरे को सबमिट करवाएंगे, मैं उसका एक एक्सेल पे शीट बनाकर पास्टर जी को सबमिट करूंगा। So lesson 1, sin and need of salvation. पहला हमारा आज का सबक है गुनाह और नजात की जरूरत। So in today's world, people look sin very lightly. हम देखते हैं कि आजकल के लोग जो है गुनाह को वो बहुत हल्के लेते हैं कि मतलब ये कुछ भी मामूली सी चीज है। Because they think it is a weakness of the flesh, चलता है। कुछ समझते हैं ये गुनाह बस हो जाता है, ये बहुत एक आम सी नॉर्मल चीज समझते हैं इसको। And unless the terrible nature of sin is known, one cannot accept God's plan of salvation. हम देखते हैं कि जो है गुनाह की नेचर वो खुदा के प्लान में शामिल नहीं है। अगर एक आदमी को गुनाह का वो डेंजर मालूम नहीं पड़ेगा, वो गुनाह में ही रहेगा। So it is very important to understand what is sin, how to overcome sin. हम देखते हैं हमें गुनाह की समझ और नजात की समझ होनी चाहिए। So are you ready? Yes. Okay, those who are ready, you can say, I am ready. I am ready. I am ready to learn the word. I am ready to learn the word. Very good. Hallelujah. Hallelujah. So in this lesson, we are going to see what is sin, origin of sin, nature and the type of sin, example of sin in the Bible. Sin cannot be hidden. Who has sinned? How does everyone sin? Consequences of sin and destination of a sinful man, and the last lesson was atonement for sin. हम देखते हैं कि गुनाह हम इस लेसन में ओवरव्यू में पढ़ेंगे कि हम गुनाह क्या है और गुनाह की जड़ क्या है, गुनाह की नेचर क्या है और इसकी कितनी इकसाम होती है और बाइबल गुनाह के बारे में क्या कहती है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि गुनाह जो छुप नहीं सकता, गुनाह कैसे आया और गुनाह किसने किया और गुनाह की तमाम जो प्रॉपर्टीज है वो हम इसी में पढ़ेंगे, तमाम खुसूसियात क्या है। And important was the 10th atonement of sin. Sin से गुनाह से हम कैसे बाहर आ सकते हो, अरे वो बहुत important है। Then we are going to end this lesson. और हम देखेंगे हम गुनाह से किस तरह बाहर आ सकते हैं। Okay, so we will study to what is sin. हम आज पढ़ेंगे गुनाह क्या है। So जो बाजू वाला है उसको पूछो what is sin. What is sin? Okay, so Bible says, hallelujah, sin is a lawlessness. As for 1 John 3:4, we are not going to read. This lesson will be given to you. Recording will be given to you. You are going to do the personal study. What do you mean personal study? You are going to go 1 John 3:4. You are going to read. You are going to write. So like that, you are going to build the study. हम देखें हम इन हवालों को खोल के पढ़ेंगे नहीं, हम इन हवालों को वीडियोस में देखेंगे और अपने पास लिख लेंगे, अपनी शख्सी दुआओं में ये स्टडी करेंगे। Okay, so what is sin according to 1 John 3:4? It is lawlessness. Lawlessness means God has given the law. When the people break that law, that is called sin. हम देखते हैं पहला यूहन्ना 3 उसकी चौथी आयत में कि गुनाह क्या है। खुदा ने कानून बनाया और इंसान ने उस कानून को तोड़ दिया, नाफरमानी कर। For example, God has asked us to walk in this way straight. जैसे खुदा हमें कहता है कि स्ट्रेट लाइन पे जाएं। So sometimes we jump from this way and we take shortcut. और कुछ कभी कभार हम लोग उस ट्रैक से हट जाते हैं। So that shortcut is called sin. जो शॉर्टकट है वो है सिन, वो ही गुनाह है जो नाफरमानी, जो हम कहते हैं कि ये बहुत लंबा है और हमें एक मुख्तसर रास्ता चाहिए। So our ways are sinful before God. जो हमारी राह है वो गुनाह की तरफ जाती है। So we should not walk in our ways, we should walk in God's ways. हमें अपनी राहों को फॉलो नहीं करना, हमने खुदावन की राहों को फॉलो करना। So as per 1 John 5:17, sin is unrighteousness, anything contrary to righteousness. हम देखते हैं पहला यूहन्ना 5 उसकी 17 आयत में जो गुनाह है वो नारास्ती है और खुदावन के हुक्मों पर
जो अमल नहीं करता वो नाराज है। The righteous is the nature of God. जो रास्तबाजी वो खुदावन की फितरत है। The righteous means a right stand before God. रास्तबाजी का मतलब है रास्ता, और बाजी का मतलब उसकी तरफ जाना। रास्ते का मतलब जो ट्रैक है जिस पर हम चल रहे हैं। रास्तबाजी खुदावन की रास्ता। So if you are not right before God, you are unrighteous. That unrighteous is called sin. हम देखते हैं जब हम खुदा की राह पे नहीं जाते तो हम लोग नाफरमान कहलाते हैं। हम जो है बेईमान होते, खुदावन के रास्ते से हट जाते हैं। So everyone say lawlessness is a sin. Lawlessness is a sin. Unrighteousness is a sin. Unrighteousness is a sin. Not doing good or right is a sin. Not doing good or right is a sin. Okay, so doing anything without faith, it is a sin. कोई भी काम जो हम ईमान के बगैर करते हैं वो भी गुनाह में आता है। It means if you do by unbelief or if you do in doubt, if you do anything in fear, it is considered as a sin according to Romans chapter 14:23. हम देखते हैं खुदा के पाकलाम में रोमियो 14:23 में लिखा है कि अगर हम कोई भी काम करें उसमें फेथ नहीं, उसमें शक है, हम शक के साथ ईमान लाएं तो वो भी गुनाह में शामिल होता है। So Romans 3:23 says missing the mark is a sin. हम देखते हैं कि जब हम मार्ग को छोड़ देते हैं, जो खुदा ने एक मार्क रखा, मींस एक्सपेक्टेशन है खुदा का, वो एक्सपेक्टेशन से हम नीचे रहते हैं। फॉर एग्जांपल खुदा चाहते हैं कि हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी ताकत से। अभी एक आदमी अपना ताकत नहीं यूज कर रहे, अपने दिल नहीं यूज कर रहे, कल अपना वोटों को यूज कर रहे, that is also a sin because that is against the expectation of God. जैसे कि हम देखते हैं कि हम दिल से नहीं बल्कि जाहिरी तौर पर बस दिखावे के लिए शोइंग ऑफ करते हैं कि हम खुदा के साथ हैं, लेकिन हमारा दिल उसके कलाम से दूर है, तो ये भी गुनाह में शामिल होता है। So we will continue what is sin. हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। According to Isaiah 53:6, going astray, खुदा से दूर जाना, that is a sin. खुदा से दूरी भी गुनाह में शामिल होती है। According to Ephesians 2 chapter 1 and 2, transgression, going beyond God's boundaries. खुदा ने सबको एक बाउंड्री डाला है, उसके बाहर जाना, that is sin. खुदावन के हुक्मों से या खुदा ने एक जो हदूद ठहरा दी है, हम उसको क्रॉस करेंगे तो वो भी गुनाह में शामिल होगा। So God's boundary are for our protection. खुदा ने बाउंड्री इसलिए बनाया कि हमारी प्रोटेक्शन हो। For example, one of the boundary I want to say, we should worship God in spirit and truth. हम जैसे कि खुदा के खादिम ने कहा कि हमें खुदा की वर्शिप रूह और सच्चाई से करनी। So somebody crossed that boundary and keep the idols, that means they are inviting the curses upon that family. जो कि दिल और सच्चाई से खुदा की हुजूर में प्रस्तुत नहीं करता, वो अपनी जिंदगी में लानतों को दावत देता है। So what is the boundary? The boundary is we should worship God in the spirit and truth. हमारी क्या बाउंड्री है? बाउंड्री ये हमारी हदूद बनती है कि हमने वर्शिप रूह और सच्चाई से करनी है। So when I am worshiping God in the spirit and truth, it is a boundary. It is a protection for me and for my family. अगर हम रोज सच्चाई से खुदा की बंदगी करेंगे तो ये बाउंड्री होगा जो कि हमारे खानदान को और हमें महफूज रखेगा। But what is transgression? I will disobey and keep some idols, keep the flower, keep the light, and I say this is my God. That is transgression, and the transgression will be punished according to the word of God. जब हम देखेंगे कि हम जो है बहुत सी लाइटों को, इस दुनियादारी को नजर मारेंगे तो हमारे ऊपर कर्सेस आएंगे, हमारे ऊपर लानतें आएंगी। And disobedience is a sin. और जो नाफरमानी है वो गुनाह। Doing what is displeasing to God, it is a sin. जो खुदावंद के हुक्मों को ना मानना ही गुनाह की तरफ ले जाता है। And not giving respect to God, it is a sin. खुदा की नाफरमानी करना मीन्स के खुदा को बेइज्जत करना है। Sin is losing God's nature in your life. खुदा की फितरत को गुनाह, खुदा की फितरत को हमारी जिंदगी से निकाल देता है। And offense against truth, it is a sin. अगर हम ऑफेंस अगेंस्ट, सच्चाई का against. अगर हम सच्चाई के बगैर काम करेंगे और खुदावंद को भूलकर काम करेंगे तो वो भी गुनाह में शामिल है। So sin is a failure of genuine love for God. गुनाह जो है हमें खुदा के प्यार से हमें दूर ले जाता है। It's a desire contrary to live God's will.
ये जो हमें खुदा की जो ख्वाहिशें, खुदा के जो कानून है, उनसे हमें दूर ले जाता है। Rejecting God, rejecting friendship of God, rejecting the fellowship of God, rejecting Jesus Christ as a Lord and Savior, these are considered as a great sin. हमें ये खुदा की मोहब्बत से, खुदा के प्यार से, खुदा के फजल से गुनाह हमें इस कदर दूर ले जाता है। So sin is originated in the heart of the shaitan. हम देखते हैं कि गुनाह की जो जड़ है वो कौन है? It is generated in the heart of shaitan. ये शैतान ने जनरेट करा। And we can say it is generated in the heart of Lucifer. जैसे कि हम कह सकते हैं कि लूसीफर ने इसको जनरेट किया। So when he fall into temptation, he fall into the pride, the sin produced. जैसे कि हम आजमाइशों में पढ़ते हैं तो गुनाह आता है। So Shaitan, sin entered to Shaitan to tempt the Adam and Eve. आज हम देखते हैं जो है शैतान वो आदम और हवा में गया, उनसे नाफरमानी करा। And because of that, it became betrayal. The Adam and Eve betrayed God, obeyed Satan. शैतान ने आदम और हवा को खुदा के खिलाफ भड़काया है। And it caused doubt inside them. Sin made them to betray God. Sin caused doubt inside them. और शैतान ने उनके दिल में डाउट डाला, खुदा के खिलाफ उसने बातें की और शक डाला है। And they tempted to disobey God. और उसने उनको बहकाया कि खुदा की नाफरमानी करें। And finally the pride entered in them. और हम देखते हैं कि उन्होंने आखिर गुनाह कर दिया। उन्होंने खुदा की इमेज को, उस शैतान ने खुदा की इमेज को आदम और हवा के जो है दिमाग में शक डाला कि खुदा ऐसा नहीं है। So there is a two type of sin. हम देखते दो तरह के गुनाह हैं। One sin which was come from through the blood of Adam. हम देखते हैं वो गुनाह जो कि आदम से चला आ रहा है। We call it as a direct sin or a root of sin. एक वो गुनाह जो कि हम डायरेक्ट गुनाह करते हैं। And other sin are sin of commission, doing something we should not do. हम देखते हैं एक और है जो कि sin of commission है। And there is another sin called sin of omission. जो सही है वो नहीं करना, वो भी गुनाह है। हाँ, जो सही है, जो सही चीज है हम उसको ना करें, वो भी गुनाह की फितरत में आता है। So we are going to read some scriptures to understand today's class. हम देखते हैं कि एग्जाम्पल देखेंगे बाइबल में से। So I will read in Romans chapter 1 verse number 29 to 31. Sister will read in Urdu. We can read together. Those who are in English, you can follow me. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, hatred of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, and ruthless. This is the fruit of the sin. When sin enters in you, it will produce all these fruits, all this nature in you. Now we'll read in Urdu. आइए हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम में पढ़ेंगे। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदगोही से भर गए और हसद और खूनजैरी, झगड़े, मक्कारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गिबत करने वाले, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, शिकन, तबे मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में जिनमें गुनाह आता है उनमें ये सब बातें पाई जाती है। उनमें नाराजगी, लालच, उसमें बदगोही भर जाती। वो हसद करते हैं, खूनजैरियां करते हैं, झगड़े करते हैं, बुग़्ज़ से भर जाते हैं, गीबत करते हैं, बदगोही करते हैं, खुदा की नजर में नफरती होते हैं, खुदा को और दूसरों को बेइज्जत करने वाले, और उनमें मगरूरी, शेखीबाजी होती है और वो बेवकूफ और शिकन और तबे मोहब्बत से खाली होते हैं। So this is the nature of sin. Means when sin comes in you, it produces all these things. जब गुनाह किसी जिंदगी में आता है तो उसमें ये सब चीजें पाई जाती हैं। So if you need to study more, you can read Romans chapter 1, 26 onwards. You will understand how the sin entered there. It is written. आप जो है इसको मजीद इसमें बढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए कि गुनाह में क्या है, रोमन्स 26
और चैप्टर 1 वर्स 26 दो वचन ऊपर से पढ़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों ये सारी बात इंसान के अंदर आई। हम जब हम बाइबल में पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि ये क्यों इंसान इन चीजों की तरफ जा रहा। So next example of the sin are recorded in the Bible. बाइबल में एक और हम एग्जांपल देखेंगे। So if you read Exodus chapter 20 verse 3 to 17, breaking the 10 commandments or practicing the adultery, covetousness, cursing others, stealing, breaking the Sabbath, murdering, lying, disrespecting the parent, these all are considered as a sin. हम देखते हैं खुदा के पाकलाम में खरूज 20 बाब उसकी 3 से 17 आयत में 10 अहकामात है। जब हम 10 हुक्म से कोई हुक्म तोड़ते हैं तो वो गुनाह में शामिल होता है। बुत परस्ती, जनाकारी, लालच, लानत करना, चोरी करना, शपथ को तोड़ना, खून करना, झूठ बोलना, माँ बाप की नाफरमानी करना, ये सब बातें गुनाह में शामिल हैं। Every time you sin, you hurt your soul. जब हम गुनाह करते हैं तो हम अपनी रूह को शिकस्ता करते हैं। Every time you repeat the sin, you are bound in the spirit realm. जब हम देखते हैं हम कंटिन्यूस गुनाह करते हैं तो अपने आप को गुनाह के आदी बनाते जाते हैं। So in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, if you do the study again, it is explained what is sin and how we should be separate from sin. जब हम खुदा के पाक कलाम में पहला करंथियों उसकी 6 बाब उसकी 10 से 9 आयत में पढ़ेंगे तो हम गुनाह के बारे में मजीद पढ़ सकते हैं और इससे कैसे छुटकारा करना है ये भी पता लगेगा। It is written that sexual immoral, idolater, adulterers, practice homosexuality, thieves, greedy people, drunkard people, rivalers, swindlers, these are considered sin. If you possess this sin, you cannot enter the kingdom of God. जब हमारे अंदर गुनाह की ये तमाम बातें जो कि खुदा के पाक कलाम में लिखी है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना भूत परस्त, ना जनाकार, ना ऐश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जुल्म, ना जालिम। हम देखते हैं जब ये तमाम फितरतें हमारे अंदर होंगी तो ये सब गुनाह की फितरत खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकती। Even though you are a born again, even though you are taken water baptism, even though you are a member of the right church, even though you speak in tongues, if you have these things, it is dangerous. जब हम देखें हमने बपतिस्मा ले लिया, हम जो है खुदा के कलाम में आगे बढ़ रहे, हमें दुआएं कर रहे, सब कुछ कर रहे, और अगर इनमें से ये कोई बात हमारी जिंदगी में पाई जाती है तो हमने गुनाह पाया। It is called your weakness. You have to pray and God will break that weakness. जब हम देखें ये कमजोरियां हमारे अंदर हैं तो हमें खुदावंद के आगे दुआ करनी। So in 1 Timothy chapter 1 verse 9 to 10 says, lawless and disobedient, ungodly and sinner, unholy and profane, these are considered liars. These are all considered, it is from the Bible, considered as a sin. हम देखते हैं खुदा का पाक कलाम हमें एक और हवाला में हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस 10 बाब 10 बाब उसके 10 से 9 आयत, पहला बाब 9 से 10 आयत। यदि ये समझ कर के शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, बल्कि बेशर्म और सरकश लोगों और बेदीनों और गुनाहगारों और नापाकों और रद्दों और माँ बाप के कातिलों और खूनियों और हरामकारों और लौंडेबाजों और बर्दा फरिशों और झूठों और झूठी कसम खाने वालों और उनके सिवा सही तालीम और बरखिलाफ काम करने वाले के वास्ते हम देखते जो शरीयत खुदावंद ने नाज़िल की वो इन तमाम के लिए की जो के शरीयत को नहीं मानते। So what you can do, as we have given 4 references, you go home and write full scripture in your note. That time you will understand exactly what sin and where it is hiding. आप जब आप घर जाओगे इन तमाम रेफरेंस को खोल के देखोगे और इसका एक नोट बनाएंगे, फिर आपको और ज्यादा मजीद बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि गुनाह क्या है और ये किस तरह इसकी इकसाम है। So as you are writing this scripture, it became a light to your spirit, and the scripture will help you to overcome the sin. जब हम इसका समरी बनाएंगे, जब हम इसको स्क्रिप्ट को लिखेंगे तो हमें और खुदावंद के रूह हमें और गाइड करेगा और हम अपने रूह में देखेंगे कि ये चीजें हमसे खुद ब खुद निकलती जाएं। Amen. So Galatians chapter 5 verse number 19 to 21, you have to read, you will understand what sin is. हम गलतियों 5 और 19 से 21
इस आयत में पढ़ेंगे और इसको मजीद समझेंगे। So, yeah, no. Okay, read. अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी मानी तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। So, now we understand what is sin अब हम समझ गए गुनाह क्या है and the nature of sin, और गुनाह की फितरत क्या है fruits of sin. और गुनाह के क्या फल हैं। So, can I hide my sin? और क्या अब हम अपने गुनाह को छुपा सकते हैं? So, what is your opinion? Can we hide our sin? No. As long we hide our sin, the sin will kill us. और अगर हम अपने गुनाह को छुपाएंगे और गुनाह हमें मार डालेगा, And that's called the wages of sin is death. यही वजह है कि गुनाह हमें मार डालता है। So Hebrew 4:13 says nothing in all creation is hidden from God. जो भी आपने किया है सब कुछ खुदा के सामने लिखा हुआ है. So you cannot hide your sin. और हम जो है इब्रानियों की किताब में देखते हैं कि जो हमने किया वो खुदावंद की नजर से छुपा नहीं है। So sin cannot be hidden. When Adam sinned, when Cain sinned, the all sin were punished by God. हम देखते हैं कि ना आदम का गुनाह खुदा की नजर से छुपा, ना कैन का गुनाह खुदा की नजर से छुपा। कोई भी गुनाह करे खुदावंद की नजर से उसका गुनाह छुपा नहीं है। Yeah. So that is in Urdu. It's already she translated. So what do you think? Who has sinned? अब हम क्या सोचेंगे कि गुनाहगार कौन है? Only those who worship the idols? वो जो वर्शिप करते हैं, बुतों का worship करते, those who not come to church, they are only the sinners. जो चर्च नहीं आता क्या वो गुनाहगार है? जो बुतों की परस्तिश करता है क्या वो गुनाहगार है? The Bible says all have sinned. खुदा का कलाम कहता है कि सब ने गुनाह किया। But what is the solution? Let me see. आइए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि इसका अब क्या हल होता है। So okay. Before going to a solution, we will learn how sin enters in the people's life, or how sin is increasing in people's life. इससे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं, हम देखें कि गुनाह किस तरह इंसान के अंदर दाखिल हुआ। The first man get tempted, हम देखते हैं कि पहला आदमी आजमाइश में पड़ा and he gets the desire, और उसको जरूरत महसूस हुई and he start to act in that. और उसने उसकी तरह अमल किया। The action is considered sin before God. एक्शन जो है हमारा अमल वो गुनाह की तरफ जा रहा है। So every man is tempted when he is drawn away and enticed by his own desire, this lust. Then when the lust has conceived, it brings forth sin, and when the sin has fully grown, it brings forth death. हम खुदा के पाक कलाम में देखेंगे, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर वो ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह बढ़कर मौत को। हम देखते हैं पहले ख्वाहिश आती है, फिर ख्वाहिश जो है जरूरत बनती है और वो गुनाह की तरफ ले जाती है। मीन्स के जैसे शॉर्टकट हम देखते हैं, शॉर्टकट में ढूंढने के चक्कर में गुनाह करता है। जब गुनाह करता है कि गुनाह उसके अंदर मौत पैदा करता है। So it is very important. Your sin, it will stand against you. जब हम गुनाह करते तो वो खुदा के खिलाफ खड़े होते हैं। खुदावन का और नो खुदावन का खिलाफ जो करता है वही गुनाह है। जो किया हुआ काम हमारा अगेंस्ट खड़ा होता है। So better to erase sin, better to kill sin. जो हम देखते हैं जो गुनाह है खुदा के खिलाफ खड़ा होता है, हमें गुनाह को रद्द करना है। So what is the consequences of sin? If you live in sin continuously, it will separate you from God. जब हम गुनाह में मसलसल रहते हैं तो वो हमें खुदा और हमारे दरमियान दूरी पैदा करता है। And finally the sin will take you to hell. हम देखते हैं गुनाह हमें जहन्नम की आग की तरफ ले जाता है। And it will create a guilt conscious in you. हम देखते हैं कि गुनाह हमारे अंदर एक गिल्ट पैदा कर देता है। And it will bring judgment upon your life. और वो खुदा की तरफ से हमारी जजमेंट होती है और हमें शर्मिंदगी आती है। So what is the final destiny of a sinful man?
और अब हम जो गुनाहगार है उसका फाइनल क्या है हम देखते हैं, इसका नतीजा क्या है। So what is your answer? और आमेन। So do you want to go hell? No. So then what you should do? Repent. You should give up. You should tell Lord, I don't want to live in sin. I want to live in you. I want to live with you. Amen. Hallelujah. So that God is merciful. He will forgive us. हम देखते हैं कि अगर अब हम गुनाहगार हैं तो हम कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में। हमें अपने आप को तौबा करना है, अपने गुनाह का इकरार करके खुदावंद की हजूरी में उसकी पनाह मांगनी है। So God has made a way to deliver us from sin. और खुदा हमारे लिए रास्ते बनाएगा कि हम किस तरह से, बनाया है। खुदा ने हमारे लिए रास्ता बनाया कि हम किस तरह से गुनाह से बाहर आ सकते That is called Lamb of God, हैं, जो कि खुदा का बर्रा है, who was slain. जो कि हमारे लिए मर गया. There is no remedy for sin in man, but God has made that plan to save us. क्योंकि हम अपनी तरफ से गुनाह से छुटकारा नहीं हासिल कर सकते, तो खुदावन ने हमारे लिए रास्ता बनाया। The Bible says, whosoever believes on the sacrifice of Jesus Christ, hallelujah, Jesus died for me, through his blood I am washed, the blood of Jesus cleanses you. हम देखते हैं कि बाइबल हमें बयान करती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम देखते हैं जो कोई खुदावंद के बेटे यीशु पर ईमान लाता है और उसको एक्सेप्ट करता है, उसमें जिंदगी आती है। So congratulations, we have completed the first lesson. Because you came late, we start late. क्योंकि आप लेट आए तो हमने लेट स्टार्ट किया। So we don't have a time for discussion. हमारे पास टाइम नहीं है कि हम डिस्कशन करें। So next week you come on time. और अगले हफ्ते आप टाइम पर आइएगा। We will have a discussion. फिर हम उसको डिस्कस करें। In the discussion we learn more. और डिस्कशन जो होता है वो हमें और सीखने में मदद करता है। Maybe you have a question, that time you can ask, we can speak. मे भी हर एक के पास एक सवाल है, वो हम डिस्कशन करने से और ज्यादा सीखेंगे। So you can write the homework. आप अपना होमवर्क करेंगे। So you are going to, in your homework you are going to write eternal. You are going to meditate what is eternal. आप अपने घर जाएंगे, इंटरनल के बारे में लिखेंगे और आपका जो माइंड है वो और ज्यादा खुलेगा खुदावंद के। And you are going to make a summary of today's class. और आज की क्लास की आप समरी बनाएंगे। If you are difficult to write, you can make a voice note. You can make a voice in your mobile. अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो आप जो है वॉइस नोट बना सकते हैं। And you can send to Sophia. आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं। And she will make your completed your homework. मैं आपके होमवर्क की कंप्लीट लिस्ट बना। So in the summary you can add what is two nature of sin. What are the two type of sin? आप जो है आप समरी में लिखेंगे गुनाह की नेचर क्या है और उसकी क्या इकसाम है। How does everyone sin? और सबने गुनाह कैसे किया। What are the example from the Bible how the sin cannot be hidden? और बाइबल गुनाह के बारे में क्या बयान करती है। So in the lesson, which two example we saw on blaming each other after sinning? हम जो देखते हैं कि खुदा हमने इसमें क्या देखा कि जो गुनाह है वो एक दूसरे को ब्लेम ही करता है। So no problem, you add your best summary. आप इसका कोई मसला नहीं, आप अपनी तरफ से अच्छी समरी बना सकते हैं। What you can do, all the scripture which are there, you write them not only as a John 1-2, full words you write, it will help you to build a strong summary. आपको हवाला उसको दर्ज करने की जरूरत नहीं, आप अपने ऑन से उसको एक समरी बनाएं, आप फ्री हैंड होके समरी बनाएं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने रूह से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। And you will get the recorded class. और जो रिकॉर्डेड क्लास है। And after submitting summary, you will get the notes also in PDF. We will send you the notes because we want you all should be higher leaders in the coming days. हम चाहते हैं कि आप कमिंग डे में और लीडर्स बने, अपने जो नोट्स है PDF में भी सेंड करें। So when you are studying, you must have a vision. I will learn the study and I will teach to 10 people. आप जब सीखेंगे तो फिर आपको खुद ही विजन मिलेगा कि आप जो आगे 10 लोगों को और सिखाएं। I mean when you are studying, जब आप सीखते हो, summary लिखते हो, पहला आपने आपको साफ करने के लिए summary लिखते हो और अंदर ऐसे डिजायर होना चाहिए आगे का दिनों में दूसरों को भी साफ करने के लिए खुदा आपको तैयार कर रहा है। Amen. So let us thank the Lord for this beautiful study.